السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں حسنین خان اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک دشمنوں کا ایک اور وار۔ لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، ڈی ایس پی لکی مروت گل محمد اور ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق منجیوالا چوک کے قریب گاڑی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ ڈی ایس پی گل محمد خان اور محافظ کو شدید زخمی حالت میں سرائے نورنگ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ڈی ایس پی گل محمد روٹین کی گشت پر تھے کہ انڈس ہائی وے کے قریب دہشت گردوں نے گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا، سرچ آپریشن جاری ہے۔ ملک دشمنوں کا ایک اور وار۔ لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، ڈی ایس پی لکی مروت گل محمد اور ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق منجیوالا چوک کے قریب گاڑی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ ڈی ایس پی گل محمد خان اور محافظ کو شدید زخمی حالت میں سرائے نورنگ اسپتال منتقل کیا گیا۔ بالکل، ملک دشمنوں کا ایک اور وار۔ لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، ڈی ایس پی لکی مروت گل محمد اور ایک اہلکار شہید اور جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق منجیوالا چوک کے قریب گاڑی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ ڈی ایس پی گل محمد خان اور محافظ کو شدید زخمی حالت میں سرائے نورنگ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ڈی ایس پی گل محمد روٹین کی گشت پر تھے کہ انڈس ہائی وے کے قریب دہشت گردوں نے گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے عرفان اللہ موجود ہیں۔ عرفان اللہ، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، منجیوالا چوک کے قریب پولیس گاڑی پر نامعلوم افراد نے اس وقت حملہ کیا ہے جب وہ انڈس ہائی وے پر روٹین کے گشت پر تھے۔ گاڑی پر فائرنگ سے ڈی ایس پی لکی مروت گل محمد اور ایک کانسٹیبل شہید ہو گئے، جبکہ 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس ڈی ایس پی گل محمد کو انڈس ہائی وے کے قریب منجیوالا چوک کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری بھی وقوع پر پہنچ گئی اور سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی گل محمد شہید حال ہی میں بڑھو سے لکی مروت منتقل ہوئے تھے اور علاقے میں امن و امان کی خراب صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے خود گشت کا آغاز کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے عرفان اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد پہلا سرکاری دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب روانہ ہوں گے، عمرے کی ادائیگی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ سعودی شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ ملاقاتوں میں مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر خزانہ سرمایہ کاری کے لیے امارات کے حوالے سے بریف بھی کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق وزیر اعظم کمرشل فلائٹ سے سعودی عرب روانہ ہوں گے، اپنے اور وفد کے اخراجات خود ادا کریں گے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو مشکوک خط موصول ہونے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ جمعے کے روز لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے۔ گزشتہ ہفتے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے تھے۔ ملک میں مشکوک خطوط کی گونج۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ تاحال جاری۔ سپریم کورٹ کے مزید ججز کو لکھے گئے خط بھی سامنے آ گئے۔ ذرائع نے بتایا خط سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تمام خطوط کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو خطوط پر بھی آرسینک پاؤڈر پایا گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے 10 ججز کو خطوط مل چکے ہیں۔ تمام خط ایک ہی تاریخ کو ارسال کیے گئے تھے۔ کچھ ججز کو اب ملے ہیں۔ ایک خط جسٹس علی باقر نجوی کے سیکرٹری نے موصول کیا۔ جسٹس علی باقر نجوی تک خط پہنچنے کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ملنے والے مشکوک خطوط کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ چند دن قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال بندخل اور جسٹس امین الدین کو دھمکی آمیز خط موصول ہوئے تھے۔ چاروں خط 1 اپریل کو سپریم کورٹ میں موصول ہوئے۔ چاروں خطوط میں پاؤڈر پایا گیا تھا اور دھمکی آمیز اشکال بنی ہوئی تھی۔ خطوط کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سمیت 8 ججز کو بھی گزشتہ دنوں مشکوک خطوط موصول ہوئے تھے، جس پر پاؤڈر اور دھمکانے والا نشان پایا گیا تھا۔ اعلیٰ ججز کو بھجوائے گئے خطوط میں خطرناک زہر کی تصدیق ہو گئی۔ سی ٹی ڈی کو خطوط سے ملنے والے پاؤڈر کی فورینسک رپورٹ بھی موصول ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق خط سے ملنے والے پاؤڈر میں 10% آرسینک زہر موجود ہے۔
CTD ने पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। पाकिस्तान पोस्ट ने आला शख्सियात की डाक चेक करने से मुतालिक मरासला जारी कर दिया। आला अदलिया के जजेस को भिजवाए गए खतूत संगीन जहर के हामिल निकले। CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। पाउडर में 10% आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। CTD ने रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है। आर्सेनिक एक खतरनाक जहर माना जाता है जिसको सूंघने से आसाब पर शदीद असर पड़ता है। ये कई सूरतों में जानलेवा भी साबित होता है। जजेस, सिफारतकारों और दीगर हाई प्रोफाइल शख्सियात की मेल्स को खुसूसी तौर पर चेक करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट का मरासला जारी। स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मास्क और दस्ताने मुहैया करने की हिदायत। अमले को लेटर्स और दीगर मेल्स को एहतियात के साथ चेक करने की आगाही फराहम। सीनियर जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल हुए थे जिनमें मशकूक पाउडर भी मौजूद था। मुल्क में हर तरह की दहशतगर्दी का सामना है। मजहबी शिद्दत पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं। परेशान कुन है कि सियासी फाशिज्म भी दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी असल रूह के मुताबिक काम करना होगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मौसर तरीके से मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र है। 9 मई को जो मनासिर देखे वो तारीख में पहले कभी नहीं देखे। हर तरह का जो टेररिज्म है उसका हमें सामना है। हर गली में, मोहल्ले में हम एक पॉलिटिकल जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, वायलेंस है, उसका हमें सामना है और वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इम्पोजिंग देयर वर्जन ऑफ रिलीजन ऑन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जो एक नेशनल एक्शन प्लान बना, आई थिंक हमारा ये रिजॉल्व होना चाहिए कि हमने ना सिर्फ उसको दोबारा से उसकी असल स्पिरिट में शुरू करना है, बल्कि ये जो जितना भी गैप आ गया है उसमें हम अगर पीछे चले गए हैं तो हमने उसको बीफ अप करना है, हमने उसको आगे लेके चलना है। एंड हम सब ने देखा कि 9 मई को उसकी एक पिक्चर दुनिया को नज़र आई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जब रिजॉर्ट करती हैं वायलेंस की तरफ तो मुल्क में क्या एनाकी होती है, क्या होता है। एज अ पाकिस्तानी माई हेड हैंग्स इन शेम। मुल्क मौशी मुश्किलात का शिकार, लेकिन पार्लियामान में ज़ाती मसलों पर तवज्जो दी जा रही है। मेंबरान को वोट इसलिए पड़ा ताकि ज़िम्मेदारी से अपना किरदार अदा करें। अवाम चाहते हैं कि हम उनकी मुश्किलात उनसे निकालें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम की दूसरी बार आसिफ अली जरदारी सदर बने। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब मैं पार्लियामान में जाता हूं और देखता हूं कि किस तरीके से जो सियासतदान हैं वो जो अपने ज़ाती इश्यूज है उन पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया वो इसलिए दिए ताकि वो अपना जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के अवाम ये अपने वोट के जरिए एक पैगाम भेज रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें और ताकि हम जुडिशल रिफॉर्म्स पे काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलवा सकें। जो सियासतदान है वो सियासत के दायरे में रह के सियासत करे। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ था उसमें अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला, फेयर ट्रायल नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तारीख रकम की कि सदर जरदारी को दूसरी बार ये सदर का ओहदा, ये वफाक का ओहदा संभाल रहा है। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत इत्तेहादी जमातों से मिलकर मौशी बहाली की कोशिश कर रही है। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि सियासत ओहदों से नहीं की जाती, सियासत अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने का नाम है। एक सवाल पर कि आपने वफाकी हुकूमत में कोई वजारत नहीं ली, क्या आपकी नज़रें पंजाब पर हैं? हमजा शहबाज ने जवाब दिया कि मेरी नज़रें आसमान की तरफ हैं। और पाकिस्तानी ये चाहता है कि मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर काविश कर रही है। सियासत जो है वो ओहदों से नहीं की जाती है, सियासत जो है वो एक खिदमत का नाम है और अल्लाह ताला को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया है। लोगों की खिदमत कर कर, अल्लाह को राज़ी कर कर, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करके इससे बेहतरीन काम कोई नहीं है। अच्छा हमजा साहब, आपने वफाक में कोई वजारत नहीं ली, आपकी नज़र पंजाब की सियासत पर ही है?
मेरी नज़रें आसमान वाले पर है। अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना का इजलास मुनक़िद नहीं हुआ। कोर कमांडर की दावत इफ्तार पर गए जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। दावत इफ्तार को इस्लामी रिवायात के मुताबिक कबूल किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इफ्तारी के बाद काबीना मेंबरान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। 11 कोर में सिक्योरिटी मामलात के लिए स्पेशलाइज्ड ब्रीफिंग रूम मुख्तस है। ब्रीफिंग के बाद सवाल और जवाबात का सेशन हुआ और वज़ीर आला ने खिताब भी किया। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की। कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोर कमांडर साहब ने काबीना को वज़ीर आला समेत ब्रीफिंग के लिए बुलाया था और वो ब्रीफिंग खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो सिक्योरिटी के हालात हैं और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इनके तनाज़ुर में तमाम काबीना को उन्होंने दावत दी थी अफ्तार की। हम वहाँ अफ्तार के लिए गए जहाँ अफ्तारी हुई और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमें तफसीली ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर साहब ने और उनके स्टाफ ने हमें मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं सिक्योरिटी रिलेटेड सिचुएशन के, उन पर ब्रीफिंग दी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। फिर वज़ीर आला साहब ने एड्रेस किया सबको, हुकूमत की जो तरजीहात हैं और इस हवाले से जो इक़दामात हम करना चाह रहे हैं उन पर वज़ीर आला साहब ने बात की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ज़हनी मरीज़ों और एहसास कमतरी का शिकार लोगों के रहमो करम पर हैं। अल्लाह पख्तूनख्वा के अवाम के हाल पर रहम करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि मरीम नवाज़ को पंजाब के अवाम की जानें अजीज़ हैं। शायद अली अमीन घंटापुर को पख्तूनों की जानें अजीज़ नहीं। सूबाइयत कार्ड खेलने के बजाय अपने सूबे पर नज़र रखें। हर मसले पर सियासत चमकाना छोड़ दें। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल ज़मानत मंजूर हुई थी। जेल ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम था। जेल ज़राए फवाद चौधरी ने ज़मानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। जेल ज़राए के मुताबिक मज़ीद जानते हैं अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल ज़मानत मंजूर हुई थी। जेल ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम था। फवाद चौधरी ने ज़मानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। आगे बढ़ते हैं। कराची में बाज़ारों के बाहर पार्किंग का मसला, बोल की निशानदही पर इंतज़ामिया का एक्शन। मोटरसाइकिल पार्किंग करने वालों के लिए खुशखबरी, गलत पार्किंग पर चार्जेस नहीं ले रहे। DIG कराची का कहना है कि लिफ्टिंग चार्जेस ख़त्म कर दिए हैं। DIG कराची की तमाम मार्केटों पर लिफ्टिंग चार्जेस ख़त्म कर दिए गए हैं। इफ्तार के औकात में चालान नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईद सर पर है, वक्त कम, मुकाबला सख्त है। कराची के बासियों की शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। कोई कुर्ता और वेस्ट कोट पसंद कर रहा है तो किसी को खुस्से की तलाश है। शहरियों का कहना है कि ईद पर कुर्ता शलवार के साथ खुस्से ना पहने जाएं तो सब कुछ ही अधूरा लगता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ से और हमेशा ईद शॉपिंग यहीं से करते हैं। अभी मैंने अपने भाई के लिए, बच्चों के लिए, मामा के लिए कपड़े लिए क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। लाइक यहीं से एक दफा ले लो, शॉपिंग एक दफा ही करते हैं ईद पे, वो कर लो तो ये बेस्ट है। मैं कहती हूँ जिस टाइम शॉपिंग करनी यहीं पे आ जाए। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है तो दुकानदार भी परेशान है, हम भी परेशान है, तो इसका हल हमें नजर नहीं आ रहा। सिर्फ सूटों में ही नहीं, हर चीज में फर्क है। पर जहाँ हम 3-4 सूट लेते थे वहाँ 1-2 सूट लेके गुजारा कर लेते। बस अब खुदों की तरफ ही आए हुए थे, बच्चों के लिए ना, तो बेटियां हैं जो है उनके लिए, खुदों के लिए आए हुए हैं। कुर्ते तो अच्छे हैं भाई, मगर रेट इतने हो गए हैं कि मार्केटों में इसी वजह से रश नहीं है और बस लोग, जाहिर सी बात है महंगाई की वजह से लोग जो है ना गायब हुए हैं। हज परवाज़ें 9 मई से 9 जून तक चलाई जाएंगी। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक तमाम आज़मीन हज के लिए स्मार्टफोन ले जाना लाजिम होगा ताकि आज़मीन सफ़र हज में मुफीद मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकें।
आज़मीन हज की तरबियत का दूसरा मरहला 15 अप्रैल से शुरू होगा। आज़मीन हज को सूट केस हैंड कैरी फराहम किया जाएगा, जबकि जूतों के लिए थैला, एहराम बेल्ट और ख़वातीन के लिए सब्ज़ रंग के पाकिस्तानी परचम वाले स्कार्फ मुहैया किए जाएंगे। साबिक़ा रिवायात को कायम रखते हुए बोल ला रहा है शब क़दर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात। पाकिस्तानी मीडिया की मारूफ शख्सियत साहिर लोधी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि डॉक्टर अल्लामा जमील राठौड़ खुसूसी दुआ कराएंगे। सऊदी अरब में रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब के हवाले से लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने मस्जिदुल हराम का रुख किया। अहले इस्लाम उम्रे की अदायगी के साथ क़यामुल लैल में भी मसरूफ़ रहे। मस्जिदुल हराम के साथ साथ मलिका बाज़ारों में गलियों में लोगों की बड़ी तादाद ने नवाफिल अदा किए। उम्रा ज़ायरीन के सिक्योरिटी के लिए सैकड़ों अहलकार भी तैनात हैं। ओवरसीज़ कम्युनिटी का बार्सिलोना में अफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इंटरनेशनल तंजीम OPGF की जानिब से बार्सिलोना में ग्रैंड अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं स्पेन से हमारे नुमाइंदे रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में रहमतें और बरकतें समेटने का सिलसिला जारी है। स्पेन में ओवरसीज पाकिस्तानीज ग्लोबल फाउंडेशन स्पेन की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन नौजवान महर फरहान, मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी हाजी मोहम्मद नज़ीर बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक हुए। पुरतकल्लुफ अफ्तार डिनर में मारूफ नातख्वां कदीर अहमद ने मखसूस अंदाज में सरवर कायनात की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मेजबानों का कहना था कि माह सयाम हमें नेकी और एतदाल पसंदी की राह पर चलने का सबक देता है। ऐसी तकरीबात से ईमान को ताजगी और पुख्तगी मिलती है। अफ्तार डिनर में स्पेन भर की सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी शख्सियात समेत मीडिया के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मेजबान शख्सियत ने तमाम मेहमानों की आमद का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में बेटी की मुबैना लड़ाई में खातून पुलिस ऑफिसर की एंट्री। DSP हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर का अहलकारों के हमरा शहरी के घर पर धावा। DSP हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर की शहरी के घर पहुंचने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खातून पुलिस अफसर ने वीडियो बनाने वाले शहरी से मोबाइल फ़ोन भी छीनने की कोशिश की। मुतासरा शहरी की वालिदा का कहना है कि 4 अप्रैल को मेरे बेटे अली को DSP हेडक्वार्टर्स के बेटे फातिक तनवीर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिक तनवीर अपने साथियों के हमरा संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फरार हो गया। मेरे शौहर ने मुतादिद बार 15 पर इतला दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़ई की तहकीकात की जा रही हैं। तो उधर कश्मीर में बदअमनी बरकरार है। सहाफ़ी भी निशाने पर आ गए। सीनियर सहाफ़ी पर कातिलाना हमला किया गया। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सीनियर सहाफ़ी को जख्मी कर दिया। जख्मी सहाफ़ी को तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई है। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर में जल्लू मोड़ के करीब घर में हौलनाक आतिशज़दगी, शोले भड़क उठे। आग लगने के बायस घर की छत मुनहदिम हो गई। 2 बच्चियां मलबे तले दब गईं। एक शख्स की जान चली गई। जाँ भाग बच्ची की शनाख्त अलीना के नाम से हुई, जबकि 10 साला उमेरा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दरख्त और पौधे जहां फल देते हैं, वहीं इंसानों को ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं। दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इदारों ने मौसम बहार में क्या इक़दाम उठाए हैं, इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे सज्जाद डार कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, दरख्त और पौधे जहां फल देते हैं, वहीं इंसानी ज़िंदगियों को ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने से इंसानी ज़िंदगियों को ऑक्सीजन भी फराहम होती है। इस सिलसिले में हम आज कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी साहब के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा कि पौधे और दरख्त जो हैं ये साया फराहम करते हैं, ये फल फराहम करते हैं, ये खुशबू फराहम करते हैं, तो इस दफ़ा जो गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट में हमारे CM है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने ये स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि इस दफ़ा हम शजरकारी मुहिम को पूरे ज़ोरों शोर से हम मनाएंगे। उसी सिलसिले में पूरे पंजाब में ये जो है ये दरख्त लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं।
हम गुजरांवाला डिवीज़न में भी हम इसका आगाज़ कर चुके हैं। हम इस दफ़ा इंशाल्लाह जो हमारा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं ये हमने हदफ रखा है कि हम 8 लाख पौधे इस दफ़ा इंशाल्लाह लगाएंगे। इसके अलावा हमारे पास PHA है। PHA जो है वो ऑलरेडी शहर की खूबसूरती को जो है वो मेंटेन कर रही है। हमारे पास जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं अगर आप उनको देखें तो आपको तमाम ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो वाकई ग्रीन नज़र आएंगी, उनमें आपको फूल नज़र आएंगे, आपको तमाम दफ़ातर जो हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए पाक फॉर्स का आगाज़ कर दिया गया। 3 माह के प्रोग्राम्स में तलबा और तालिबात को ऑटोकैड, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और क्रिप्टो राइटिंग कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। वाना, नौश की, सरारोगा और सरगई के 77 तलबा और तालबात बैच में शरीक होंगे। अब तक 180 नौजवान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जदीद कंप्यूटर लैब्स भी कायम की हैं। नौजवानों ने सूबाई हुकूमत और पाक फौज की जानिब से जदीद उलूम के फ़रोग़ के इक़दामात को खुशाइंद करार दे दिया। खर्चा पूरा करता हूँ और मैंने डिजी स्किल से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है और इस कोर्स में मैंने कंटिन्यू भी किया है और इस पर अर्निंग भी स्टार्ट किया है। तो उधर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद खित्ते में दहशतगर्दी ने जन्म ले लिया है। बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सालाना 19वां इजलास मुनक़िद हुआ। शंघाई ताउन तंजीम ने अफ़गान हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अफ़गान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दाम करें। कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफ़गान हुकूमत वादे पूरे करे। मानसेरा में टिम्बर माफिया बेलगा महकमा जंगलात के एहलकारों की मिली भगत से जंगलात का सफाया किया जाने लगा। कौमी ख़जाने को अरबों रुपये का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मानसेरा थाना बटल पुलिस ने भी कमर कस ली। 24 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की कीमती लकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। ड्राइवर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO मानसहरा के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। महकमा जंगलात के एहलकार या अफसरान के मुलविस होने के शवाहिद मिले तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह बर्लिन में भी अफजल तरीन रात लैलतुल क़द्र की तलाश में मुसलमानों का शब बेदार और इबादत का खुसूसी एहतमाम। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब इदारा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल बर्लिन की तरफ से मस्जिद में तकमील कुरान मजीद की सादत हासिल की गई। सलात व तस्बीह का भी एहतमाम किया गया। तौबा, इस्तग़फ़ार और बख्शिश की दुआएं भी की गईं। शब कदर की फजीलत पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खेलों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में अमन के फ़रोग़ में खेलों के अहम किरदार को उजागर करना है। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में स्पोर्ट्स तंजीमों के ज़ेर एहतमाम तक़रीबात का एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है। खेल तमाम सकाफ़तों में खैर सगाली, सेहतमंदाना मुकाबला और ताउन के हुसूल का एक मुस्बत तरीक़ा है। 23 अगस्त 2013 को अक़वाम मुत्तहिदा ने तरक्की और अमन के लिए खेलों का आलमी दिन हर साल 6 अप्रैल को मनाने का फ़ैसला किया था। T20 की क़यादत में तब्दीली के अमल को साबिक़ कप्तान मिसबाहुल हक ने नामुनासिब करार दे दिया। एक बयान में कहा कि जिस तरीके से कप्तान तब्दील किया गया वो पहले भी गलत था और अब भी गलत है। हमारे यहाँ कप्तानी की तब्दीली बड़े नाखुशगवार तरीके से होती है। असर खिलाड़ियों की कारकर्दगी और बाहमी ताल्लुकात पर पड़ता है। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक का स्ट्रेट ड्राइव T20 टीम की क़यादत में तब्दीली के तरीक़ेकार पर अपनी नापसंदीदगी जाहिर कर दी। कहा तब्दीली का अमल पुरवकार होना चाहिए जिससे किसी को भी तौहीन, तज़हीक और आहानत महसूस ना हो। इस तरह ना किए जाने से प्लेयर्स में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ बदले का रुझान भी जन्म लेता है जिससे टीम और ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत कशीदा हो जाता है। उन्होंने कहा बाबर आजम भी स्टार हैं और शाहीन आफरीदी भी। किसी एक को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे की हक तलफी और नाइंसाफी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाहकुन हो सकती है। बोर्ड को इस तरह की रविश की हौसला शिकनी करना चाहिए, लेकिन इस वक्त PCB इसको बढ़ावा देने के रास्ते पर गामजन है। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस कोच की जरूरत है और कौन बेहतरीन साबित हो सकता है। ये बात जहन में रखकर फौरन या मुल्की कोच का तकर्रुर किया जाए। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह आफरीदी के इंस्टाग्राम पोस्ट ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इंस्टाग्राम स्टोरी ने पाकिस्तान क्रिकेट में सब अच्छा है का तासुर ज़ाइल कर दिया। खिलाड़ियों के दरमियान रस्साकशी और इख्तलाफात की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया।
पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी एक पेज पर नहीं, कप्तानी की सेज को म्यूजिकल चेयर बनाना बोर्ड के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। शाहीन आफरीदी ने लगी लिपटी रखे बगैर पाकिस्तान क्रिकेट की राहदारियों में पनपने वाली रेशा दवानियों और कुर्बानी का बकरा बनाए जाने की पुरानी रीत का पर्दा चाक कर दिया। सुपरस्टार क्रिकेटर ने वीडियो के कैप्शन में दर्ज किया कि मुझे कभी भी ऐसी पोजीशन में ना डालें जहां मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। मेरे सब्र को ना आजमाए क्योंकि मैं सबसे मेहरबान और प्यारा इंसान हूँ जिससे आप कभी मिले हों। लेकिन एक बार जब मैं अपनी हद तक पहुँच गया तो आप मुझे वो काम करते देखेंगे जो किसी ने नहीं सोचा था कि मैं ये कर सकता हूँ। इनसाइड स्टोरी ने फैंस को 90 की दहाई की याद दिला दी जब कप्तानी को लेकर उस वक्त के सुपरस्टार के दरमियान एक जंग छिड़ गई थी। सिर्फ एक सीरीज में कप्तानी के बाद शाहीन आफरीदी को हटाकर क़यादत बाबर आजम को देना बोर्ड के लिए तनाज़ात की आग को मजीद हवा देना साबित हो सकता है। SCO1 नेटवर्क और साइबरनेट के दरमियान सहफरीकी मुआहदा तय पा गया है। मुंतज़मीन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। तकरीब में SCO के डायरेक्टर जनरल ने शिरकत की। वन नेटवर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी शामिल हुए। वन नेटवर्क के बिजनेस हेड भी तकरीब का हिस्सा बने। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन शुमाली इलाकों का बेहतर नेटवर्क है। मुआहदे का मकसद खुंजराब से कराची के तवील फासले को समेटना है। सहफरीकी मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान को माशी फ़ायदा भी हासिल होगा। जनूबी अफ्रीका के प्रोफेशनल फुटबॉलर ल्यूक फ्लोरेस को कार हाईजैकिंग के दौरान गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर नामालूम अफराद ने 24 साला ल्यूक फ्लोरेस को गाड़ी से बाहर निकलने का कहा, गोली मारी और कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ज़ाती दुश्मनी और डकैती मज़ाहमत समेत कत्ल के दीगर असबाब पर तहकीकात कर रही है। CCTV फुटेज की मदद से भी कातिलों की तलाश की जा रही है। और अब गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं। शुमाली और वस्ती गजा समेत रफ़ाह में इसराइली हमलों में कल से अब तक 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक जारी इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 33,000 से भी तजावुज़ कर गई है। गजा में इजरायली हमलों में मजीद तेजी आ गई। निहत्ते मुसलमानों पर मजालिम पर हर आंख अश्कबार। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के दावे कागजों तक महदूद रह गए। मजलूम मुसलमान आज भी 2 अरब मुसलमानों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। तबाह हाल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए इजरायली फौज ने हमले तेज कर दिए। सेहूनी फौज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 60 से जायद मासूम फलस्तीनी शहीद हो गए। मुकामी तिब्बी ज़राए के मुताबिक महसूर गजा की पट्टी में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 33,091 अफराद शहीद जबकि जख्मियों की तादाद 76,000 के करीब जा पहुंची है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यौम अल-कुद्स और जुम्मतुल विदा पर जारी पैगाम में कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम आज जुल्म जबर की मजम्मत करती है और निहत्ते फ़लस्तीनियों के हर दुख और दर्द में उनके साथ है। और अब आपको बताएं कि कराची में ऑटिज्म से आगाही के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। कराची के इलाके बहादुराबाद में तिब्बी माहिरीन की जानिब से वॉक में डॉक्टर ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। शुरा का कहना था कि अप्रैल में ऑटिज्म से आगाही का महीना मनाया जाता है। ऑटिज्म बच्चों शख्सियत में मुख्तलिफ पहलुओं की अलामत है जिसके बायस बच्चे दूसरों से ज़्यादा गुफ्तगू और खुल मिल नहीं सकते। ऐसे बच्चों को रहनुमाई की ज़रूरत होती है। आजकल ऑटिज़म के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। दुनिया में हर 35 में से एक बच्चे में ये अलामत पाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक तवज्जो दी जाए तो ऑटिज़म का इलाज मुमकिन है। कल्लात में तवील सर्दी के अख्ताम पर मौसम बहार की आमद है। दरख्तों पर फूल खिलने से शहर की फ़ज़ा मुअत्तर हो गई। शहरियों ने इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए बागात का रुख कर लिया है। आगा कादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। कल्लात में शदीद सर्द मौसम रिहायशी अफराद का जबरदस्त इम्तिहान लेकर इख्तिताम पजीर। मौसम बहार की आमद से कल्लात के बासियों के चेहरे खिल उठे। अनवा इकसाम के फलों की खुशबू ने माहौल को मजीद मुअत्तर कर दिया। सेब, खुबानी, बादाम, आड़ू, चेरी, ब्लैक अंबर और दीगर फलों से लदे दरख्त एक ऐसा मंजर तश्कील देते हैं जिससे जिस्मो जान को नई ताजगी मिलती है। लोगों ने जो है बागात का रुख पे चक्कर लगाने की सैर तफरीह कर रहे हैं और बागात में सेब का फल भी निकल चुका है, चेरी का, आड़ू का, ब्लैक एम्बर का और तमाम जितने भी फल कलात में होते हैं इनका जो है फूल निकल रहा है। कलात में मौसम बहार की आमद है।
यहाँ फूल निकल आए हैं درختوں کے. ہم اور ہمارے دوست यहाँ ابھی درختوں کے باغیچوں کے اندر لطف اٹھانے کے لیے آئے ہیں. موسم بہار سے کلات کا روپ رنگ اور بھی نکھر گیا. مقامی افراد کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے یہاں کا رخ کرنے والے سیاح بھی شہر کے حسن اور دلکشی کے اسیر ہو گئے. اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.